Have you observed the types of trees, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in and around you? Are they similar or they are having any variation? Now we are talking about India. ये तो हमारे हैं बायोफॉर्म्स. We are talking about the biodiversity. Diversity means alag alag, different. And biological means the one which is having the life. And flowers as well as plants, then आपके animals, all of them are having life. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. Means we have all kinds of different species of animals as well as of the plants. We have 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and fourth in Asia in plant diversity. The number of plants, a kind of plants. In fact, India is having a beautiful that plant that is Himalayan yew, which is used to cure cancer. And this is found only in India in the northeast areas. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% of the world's total flowering plant. The country has many non-flowering plants, मतलब कुछ तो जिसमें फूल आते हैं, जिसमें नहीं आते, जो कांटे होते हैं, like ferns, algae, fungi. Besides, around 90,000 species of animals, variety of fish in its fresh and marine water. हमारे जो भी जहाँ पर भी हमारा जो है, एक तो रिवर्स है एंड ऑल द कोस्टल एरियाज जहाँ हमारा अप्रोच है. Natural vegetation refers. Now the question comes, what is natural vegetation? Natural matlab something which is born naturally. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human and has been left undisturbed by humans for a long time. जितने भी आपके जंगल हैं, इनको हमने जानबूझ के नहीं किया. हम जंगली क्यों बोलते हैं? Because they have grown on their own. They don't require, हम इनको ना तो हम लोग इनको खाद डालते हैं और ना ही हम इनको जो है मतलब कि हम इनको पानी देते हैं. They are born due to the rainfall है, then जो natural खाद है वही इनके लिए. This is termed as virgin. Virgin matlab which is untouched. Thus, cultivated crops and fruits and orchids form vegetation. लेकिन हम इनको उगाते हैं, but not natural. Natural is something which is completely grown on its own. Next is the virgin vegetation, which are purely endemic, which are purely Indian, are known as endemic. And the one which are coming from outside, they are termed as exotic. Like I told you, flower, आपका जो rose है, that's an exotic plant because it was not grown. मतलब basically वो Indian नहीं है. Some of the stems were brought from some other areas. Even though coffee is a plantation, it is not actually a virgin vegetation. लेकिन coffee आपका जो है exotic में आ जाता because it was brought from Arabica. Arabia से आया था वो. The term flora, flower, is used to denote plants of a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred as fauna. आपके पेपर में आता है what is natural vegetation and मतलब कि आपको flowers, flora and fauna बताना है. And India is a biodiverse country, तो उसके अंदर आपको जो है ये वाला जो पैराग्राफ है इसको एक्सप्लेन करना है. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. Now factors influencing the flora and fauna of a country. आपका basic है relief feature और climate होता है, ये दो होते हैं. लेकिन रिलीफ के अंदर आपका आ जाता है लैंड एंड सॉइल और क्लाइमेट के अंदर आ जाता है आपका टेम्परेचर, फोटो पीरियड, ये सब. लैंड. Land affects the natural vegetation directly or indirectly.
एज आई टोल्ड यू दैट डे, आप माउंटेन में रहते हो तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ अलग होती है, क्योंकि उसका जो सॉइल होता है वो अलग होता है। प्लेटू रीजन में आपके रेड सॉइल होता है तो वहाँ पर आपके अलग तरीके के वेजिटेशन होते हैं। वेर इज इफ यू गो टू द कोस्टल एरिया, वहाँ आपका लेटेराइट सॉइल होता है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। फर्टाइल को तो हम एग्रीकल्चर के लिए लेते हैं, जैसे आपका अलूवियल सॉइल। The undulating and rough terrain are areas where grassland and woodland develop and give shelter to variety of wildlife। यानी कि जो आपके पहाड़ों का एरिया है वो, वहाँ पर आपके जो है मतलब कि ज़्यादातर फॉरेस्ट होते हैं, नहीं तो जो आपकी वैलीज भी होती हैं वो पूरे हरियाली होते हैं। एंड दिस, यहाँ जो ग्रासलैंड होता है, यहाँ आपके जो नोमैड्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को लेकर आते हैं फॉर कैटल रियरिंग। सॉइल, सेकेंड इज सॉइल। अब लैंड जैसा भी हो, उसके ऊपर किस तरीके का सॉइल है। लाइक इन दी एरिड एरिया, डेजर्ट एरिया में यू विल नॉट फाइंड द यू विल नॉट फाइंड द नॉर्मल वेजिटेशन, वहाँ आपको कैक्टी मिलेगा। वेर इज इफ यू गो टू द डेल्टा सॉइल, दैट इज आपके जहाँ पर कोस्टल एरिया, वहाँ पर आपको पेड़ ऐसे झुके हुए मिलेंगे। सॉइल नीचे कौन सा है, लेटराइट है, अलुवियल है, दिस ऑल्सो मैटर्स। द soils also vary over space. Different types of soils provide basis for different types of vegetation. Sandy supports cactus and thorny, while wet, marshy, deltaic support mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes have conical trees. Second is climate. The character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along the humidity in the air, precipitation, and soil. On the slopes of the Himalaya and hills of Peninsula, जहाँ 915 मीटर से above होता है, the fall in temperature affects the types of vegetation, and it changes from tropical to subtropical, temperate and alpine. Tropical आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, सब ट्रॉपिक आपका ऊपर। एंड जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो उसमें आपके वेजिटेशन की ग्रोथ में फर्क दिखता है आपको। फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट। फोटो पीरियड इज टर्म्ड एज सनलाइट, द अमाउंट ऑफ सनलाइट जो आपको पूरे दिन में मिलता है, दैट। इन दी विंटर्स सनलाइट आपका कम होता है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंस इन latitude, altitude, season, duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. Precipitation यानी कि बारिश। In India, almost most of the entire rainfall is brought by the advancing southwest monsoon and retreating northeast monsoon. Areas of heavy rainfall, जैसे आपका, मैंने आप बार बार मैं बोलती हूँ, वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है वहाँ पर यू विल सी डेंस वेजिटेशन। देन आप असम वगैरह में जाओगे, वहाँ आपको डेंस वेजिटेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली की तरफ आते हो या यूपी की तरफ आते हो तो वहाँ पर आपको जो है कंपैरेटिवली कम मिलेगा। So now the next question comes is, why is forest important for us? Because forest gives us everything. You know, पहले ज़माने में क्या होता था, जो फॉरेस्ट होता था, जहाँ जो आपके नोमैड्स होते थे, जो आपके ट्राइब्स होते थे, नोमैड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो वो लोग उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पर दे गेट दीज समथिंग। और ट्राइब्स आपके होते हैं जो जंगलों में रहते थे, गोंड आपके, देन मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, अभी भी हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपके वहाँ के फॉरेस्ट। एंड दे यूज एवरीथिंग, मतलब जो बार्क ऑफ ट्री होता है वो उसको भी यूज करते हैं। दे यूज मतलब कि फ्लावर्स को यूज करते हैं। दे यूज द ऑयल दैट दे डिराइव फ्रॉम द, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम लोग अपने जितने भी लकड़ियों का हमारा बेड है या हमारे फर्नीचर हैं, ऑल द टिम्बर, एवरी फर्नीचर दैट इज मेड, दैट कम्स। Then it is also providing us with number of medicines. इतने सारे medicines हैं हमारे पास में। So then we are using the bark of the tree to make paper. It is supporting the humans as well as the commercial activities of humans.
They modify local climate, control soil erosion, regulate the flow of stream, support industry, provide livelihood for many communities, offer panoramic or scenic view for recreation. मतलब ये सब कुछ जो है, what are the importance of forest? They control wind force and temperature and cause rains. अगर आप वाटर साइकिल का साइकिल देखोगे, वाटर साइकिल, पानी नीचे से आपका जो है एवोपरेट होता है, देन इट मूव्स, देन जो आपका फॉरेस्ट होता है वो उसको प्रेसिपिटेट, उसको कंडेंस करता है, एंड देन इट गोस एज एवोपरेट होकर वो जाता है एज क्लाउड्स, एंड देन इट कम्स एज अ, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द cycle of rain. They provide humus to the soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors. मैंने आपको बताया था कि पहले हमारा जो है 23 to 24% था. Right now, just 2 days back, I read the news that there is an increase in the forest area. बट फॉरेस्ट को हम इसलिए काट लेते हैं क्योंकि हम वी नीड द कल्टीवेशन फॉर लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग, देन पेस्चर्स जो हैं वो ओवरग्रेज होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेस्चर्स होते हैं, जो नोमैड्स होते हैं, वो अपने कैटल को लेकर चलते हैं. हमारे अलग अलग नोमैड्स हैं. आपके जो कश्मीर की तरफ है वहाँ पे आपके गुजर बक्कर वाला, महाराष्ट्र की तरफ आपके दंगर्स, देन आपके कर्नाटका की तरफ कुरुआ, कोरमा, अलग अलग जगहों पे होते हैं. तो जैसे जैसे बारिश होती है, जहाँ ग्रीनलैंड होता है, ये लोग अपने गाय को वहाँ पे चरने के लिए छोड़ते हैं, एंड लेटर ऑन दे यूज देम एंड सेल आउट इन द नियर बाय एरियाज. बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, मतलब क्योंकि उसको पुल कर देते हैं जितना घास होता है, तो मिट्टी आपकी जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है. The vegetation cover of India in large part of is no more natural in the real sense. क्योंकि most of the vegetation now we are started using. But yes, there are some areas in Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali. Marusthali मतलब आपका desert area. The vegetation in most of the areas have been modified, replaced or degraded. मतलब इन जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर तो हमने खूब छेड़छाड़ी कर दी. Now, how do we divide the Indian? This is the one. ये आपके ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट डार्क वाले. दिस इज द डेसिडुअस. मोस्ट ऑफ द इंडिया का मैक्सिमम एरिया आपका डेसिडुअस में आता है. द वन ऑन द हिली एरिया, दैट इज द हिल फॉरेस्ट और व्हाट वी कॉल एज मॉन्टेन. देन ये जो छोटे छोटे से हैं ऑन द कोस्टल आपके मैनग्रोव, एंड दिस इज द थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पर आपके जो है बारिश कम होती. Three of them are divided on the basis of the rainfall, and the rest two are divided on the type of vegetation. These forests, सबसे पहला है evergreen, second is deciduous, third is thorn forest, fourth is montane, and fifth is mangrove. Evergreen. Evergreen means most of the time the leaves जो है वो green नहीं होते, yellowish बहुत कम होते हैं. ये इनका जो है लेयर है, मतलब छोटे छोटे श्रब, फिर यंग ट्रीज, फिर आपके बड़े बड़े. These forests are restricted to heavy rainfall in the areas of Western Ghats, Lakshadweep, अंडमान एंड निकोबार, पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. They are at best in areas having more than 200 centimeters of rainfall and a short dry season. बीच में बारिश के बीच का जो टाइम होता है. The trees reach great height up to 60 meters or even above. And it has got luxuriant since the region is warm and wet throughout the year, it has luxuriant vegetation like tree, shrub, creeper, giving it a multi-layered मतलब नीचे छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े आपके shrubs भी होते हैं, creeper आपके जो हैं वो भी होते हैं. Creepers are आपके climbers.
There is no definite time for the trees to shed their leaves. So ज़्यादातर they appear green, मतलब कभी कोई शेड करता है, इसीलिए ज़्यादातर ये एरिया देखने में आपको जो है हरा नज़र आता है. Some of the commercially important trees are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. ये सभी हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं. इबोनी, महागोनी, रोजवुड आपके जो है लकड़ियाँ फर्नीचर और में यूज़ होता है. रबर इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ग्लव्स बनते हैं, हमारे शूज़ बनते हैं, टायर बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं. और सिंचोना इज़ अ मेडिसिनल प्लांट. ये सब कुछ आता है पेपर में. The common animals found are elephant, monkey, lemur, deer. Then one horsed आपके rhinoceros है, which is in the Assam, West Bengal. Then आपके अलग अलग तरीके के birds, bats, sloths, scorpions, क्योंकि बारिश होती है वहाँ पे, इसीलिए scorpions, snails, snakes ये भी पाए जाते हैं. डेसीडुअस, इसमें आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई डेसीडुअस एंड वेट डेसीडुअस. इस वाले में आपके क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट, क्योंकि डेसीडुअस आपका है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 के बीच में है. इसको दो डिवाइड कर दिया गया है. जहां 70 टू 100 आता है उसको हम ड्राई डेसीडुअस बोलते हैं. जहां 100 टू 200 आता है उसको हम वेट बोलते हैं. They are the most widespread forest of India and they are also called as monsoon forest. याद रखना. And they spread over the area where 70 to 100. Trees of this forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. जब आपकी बिल्कुल ड्राई होता है मई जून में. On the basis of the availability of water, they are divided into moist and dry deciduous. The former यानी कि moist, wet 100 to 200. They actually हमारे यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालय के जो फुट हिल्स, शिवालिक वाला जो एरिया, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का जो एरिया वहाँ पर, एंड वेस्टर्न घाट्स का जो इस तरफ वाला एरिया वहाँ. बैम्बूस आपके जो फ्लूट होता है वो बनता है. Bamboos are also used as food in Assam. Then bamboos का वो लोग जो है they even make the pipes. Then साल, शीशम, सैंडलवुड. सैंडलवुड आपका जो है ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो ईस्टर्न स्लोप है वहाँ सबसे ज़्यादा है. सैंडलवुड की सबसे ज़्यादा व्हाट वी कॉल एज खासियत क्या होती है? एक तो पुष्पा मूवी, रेड सैंडल. वी हैव टू सैंडलवुड, वन इज रेड सैंडलवुड एंड वन इज द नॉर्मल सैंडलवुड, जो हम अपने घर में चंदन यूज़ करते हैं फॉर गॉड लगाने के लिए. एंड इसकी खासियत ये होती है कि दिस सैंडलवुड इज एक्चुअली सर्कमवेंटेड बाय स्नेक्स. इसके चारों तरफ जो है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो आपके बहुत स्नेक्स मिलते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. And India के अंदर there was a person called Veerappan who was called as a smuggler, a sandalwood smuggler. Teak, the most dominant. Teak is again very costly. Khair, Kusum, Arjun, these are all used for medicine. Mulberry आपका silk के लिए use होता है. The dry deciduous are found in between 100 to 70 and 100 के बीच में, and they are mostly in the peninsular plateau, plains of Bengal, so बिहार, उत्तर प्रदेश. यहाँ पर भी आपको टीक, साल, पीपल और जो नीम के होते हैं वो. A large part of this region has been cleared for cultivation and some are used for grazing. You can find lion, tiger, pig, deer, elephant, lizard, snakes, tortoise. The thorn means जहाँ आपकी बारिश लेस देन 70 है, जहाँ द स्टेम्स जो होते हैं ऑफ द प्लांट्स इज सर्कुलेट द वाटर. That this type of vegetation is found in the northwestern part of the country.
Teak is used, yes, basically it is used for the furniture only, and it is very, very, very costly. इट इज़ वेरी कॉस्टली कॉस्टली मतलब एक टीक का जो है ना एक छोटा सा इवन इफ यू वांट टू मेक से एक कंप्यूटर टेबल बनाना हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15,000 द प्योर Okay, ma'am. इट्स वेरी बट इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल द रीजन्स विच आर लेस देन 70 वहाँ आपके नेचुरल कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस. This is found basically in the northwest, that is Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, UP, Haryana. But mainly आपका गुजरात एंड राजस्थान वाला एरिया बड़ा है. Acacia, palms, euphorbias, cacti. These are all a kind of thorny one. The trees are scattered, have long roots penetrated deep into the soil in order to get moisture. The stems are succulent to get conserve water और तभी उनके जो है ना thorns बने होते हैं. लीव्स आर थिक. अगर आपने कभी वो देखा हो कैक्टस हो या फिर आपने वो देखा हो घर के अंदर हम लोग क्या उगाते हैं द जेल एलोवेरा. अगर आप देखोगे ना तो उनके जो स्टेम्स होते हैं मोटे होते हैं. These forests give way to thorn forests and scrubs in arid areas. We can find rats, mice, rabbit, fox, wolf, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स एंड उस दिन मैंने आपको बताया था a special type of chipkali, that is the desert lizard. In the mountainous area, ये तो तीनों जो हमने पढ़े थे they were according to the water they receive, the monsoon they receive. Now we are coming to the temperature zone. The decrease in temperature with increasing altitude corresponding change in natural. मतलब कि जितना जितना आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा और आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, एल्टीट्यूड द मोर आपका आप मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा. If you are in Delhi, right now it might be 10 degree, but if you are in Kashmir, it might be -2 degree. जितना altitude उतना temperature decrease. Higher the altitude, lower the temperature. I remember this my teacher taught me in ninth standard. Higher the altitude, lower the temperature. As such, there is a succession of natural vegetation built in the same order from tropical to tundra. Tropical आपका जो नीचे की जगह है and towards the ऊपर की तरफ को हम टुंड्रा बोलते हैं. टुंड्रा आपका होता है एकदम ऊपर, एकदम आइसी जो एरिया है उनके ऊपर का जो रीजन होता है उनको हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं. The wet temperate types of forest are found between the height of 100 and 200 meters. जब आप नीचे चलते हो तो 1000 से 2000, दैट इज शिवालिक वगैरह आपका जो आता है. बिटवीन यहाँ आपको ओक्स, एवरग्रीन, ब्रॉड लीफ ट्रीज, चेस्टनट्स ये मिल जाते हैं. Between 15 to 3000 you will find coniferous, it's cone, पाइन, देवदार, सिल्वर फर. इनके ना सिल्वर फर ना इनके अगर आप देखोगे ना तो इनमें जो ऐसे फ्लावर से निकले होते हैं ना वो सिल्वरी सिल्वरी से होते हैं. स्प्रूस, सिदार. These forests cover mostly the southern slopes of Himalayas and places having high altitude in southern and northeast India. At higher elevation और ऊपर जाओगे तो grasslands, that is more than 3600. Temperate forest and grasslands give way to alpine vegetation. Alpine is the one which is covered with snow. Silver fir, juniper, pines, birches. However, they progressively stunted as they approach the snow line. मतलब इनकी जो हाइट होती है वो कम हो जाती है जैसे जैसे ये लोग टुंड्रा के पास चलने होते हैं वहां. Ultimately through shrubs and scrubs they merge into the alpine grassland. और जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं इनकी जो हाइट कम होते होते ये grassland में तब्दील हो जाते हैं. These are used extensively for grazing by the nomadic tribes like Gujjars and Bakarwalas.
और बिल्कुल टुंड्रा, जिल बिल्कुल आप आइसिस के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको मॉसेस, काई, लिचेंस होते हैं, वो मिलते हैं। द कॉमन एनिमल्स आर कश्मीरी स्टैग, मतलब मोर और लेस यू फाइंड द डियर, शीप, देन रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, अ काइंड ऑफ आपके जो बुल, उसकी वजह जैसा, लेपर्ड, स्क्विरल, वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शीप, गोट, ये सब आपको मिल जाते हैं, याक। नेक्स्ट इज मैनग्रोव, द वन नियर द कोस्टल एरियाज, जहां आपके टाइड्स, तेज तेज आपकी जो है वेव्स आते हैं। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, मिट्टी भी होती है और जो पानी से सिल्ट निकलता है वो। Dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged. You can see the photo. This had come in the paper also. अभी तो शायद नहीं आएगा. The deltas of Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri are covered by such vegetation. In Brahmaputra delta, डेल्टा मतलब आपका जो है इट इज अ ट्रायंगुलर, हमने ड्रेनेज में पढ़ा था जब पानी जो है वो दो हिस्सों में बट जाता है और बीच में वी शेप सा आपका जो है लैंड बन जाता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। एंड आपका जो ब्रह्मपुत्रा वाला डेल्टा वो हमारा था सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा इज व्हेन द वाटर ब्रांचेस टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस, दो रिवर्स में बट जाता है एंड बीच में एक वी शेप सा आपका जो है रीजन बन जाता है। यू कैन फाइंड ड्यूरेबल, मतलब कि हार्ड टिम्बर, पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, केवड़ा आपका विच वी यूज इन द फूड, अगर ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ द डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर is a famous turtle, crocodile, gharial, snakes. This is because that's a watery area, so anything which supports water you can find it. This can come as a match the following. These are some of the um, medicinal plants which we are using. Some of them are patented. Some of them are patented. What is the meaning of patent? मतलब कि हमारा जो है इन पर पूरा हक है और हमने इनको जो है डिस्कवर किया है, तो सम ऑफ द फॉरेन कंपनीज इनको यूज कर रही हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस अंडर आवर नेम। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। सम 2000 plants have been described in Ayurveda और हम लोग यूज कर रहे हैं। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज 352 मेडिसिनल, जिसमें से 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेड एंड 49 एंडेंजर्ड। उसमें से एक है सर्पगंधा विच इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर। जामुन, इसको तो हम अलग अलग तरीके से भी, हम लोगों को खाने में भी अच्छा लगता है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। अर्जुन, ईयर एक के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। बबूल, it's used for the gums as well as for the eye sores, आंखों में जो फुंसी फुंसी आ जाती है। नीम, इट हैज़ गॉट मेनी प्रॉपर्टीज, वो एंटीबायोटिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, हम उसको हर तरीके से यूज़ करते हैं। नीम का तो जो पत्ता होता है उसे भी यूज़ करते हैं, उसके जो टहनी होती है वी यूज़ इट एज, वी आर यूजिंग इट फॉर द टूथ पर्पस। नीम का तेल यूज़ होता है। तुलसी, we use it for curing cold and cough, and we it's also, हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं। नाउडेज तुलसी के अलग अलग रूप आ गए हैं, लाइक बेसिल जिसको हम खाने में भी यूज करते हैं। कचनार, इट्स यूज फॉर अस्थमा एंड अल्सर्स। This way there are many medicinal plants which we use, and I told you one that there is one plant called Himalayan yew, and this is one of the rarest plants that is found which is used for treating cancers. Like its flora, अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो था हमारे फूल और पत्ते, natural vegetation. अब हमारे हैं animals. We are having kinds of animals, birds, number of bird sanctuary, आपका भरतपुर में bird sanctuary है,
देन आपका यहाँ पर है सोना के पास बर्ड सैंक्चुरी है. मतलब वी आर हैविंग बर्ड सैंक्चुरीज जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं. The country has about 2,000 species of birds and 90,000 animal species. And world का 13% है. We have 2546 fish, 12% of the world's stock. And amphibian, reptiles, mammals. Elephants जो सबसे common है, you can find elephants most of the time where you are going to the केरला वगैरह आप जाओगे वहाँ पर आपको बहुत मिलते हैं. असम वगैरह जाओगे वहाँ आपको मिलते हैं. दे आर द मोस्ट मेजेस्टिक, मतलब बहुत बड़े और सुंदर among the mammals. Then one horned rhinoceros which is there in Assam, Kaziranga, क्योंकि आपके पेपर का ये मैप क्वेश्चन है. एंड एरिड एरिया के अंदर यू विल फाइंड एस, कैमल, इंडियन बिसॉन, दैट इज आपके भैंस, नीलगाय, चौसिंगा, गेजल काइंड ऑफ डियर, और बहुत सारे काइंड ऑफ डियर. हमारे यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है. डू यू नो व्हाट इज कस्तूरी मृग? ये जो कस्तूरी होता है, दिस इज एक्चुअली वन विच इज यूज टू ट्रीट छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेनी मेडिसिन. एंड हमारे ईस्टर्न पार्ट्स वगैरह में जो डियर होता है वहाँ होता है. ये पाया जाता है डियर जो होता है यानी कि हिरन, उसके नाभि में, जो पेट का नाभि होता है उसमें. एंड इसकी खुशबू इतनी होती है कि जो डियर होता है उसको समझ नहीं आता कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो पूरे के पूरे जो है उसमें जंगल में घूमता है, मृगचरिका. सो वी आर हैविंग दीज काइंड्स ऑफ मतलब डियर. हमारे पास अलग अलग हैं. ब्लैक बक है हमारे पास में, स्पॉटेड डियर है. इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस. वेस्टर्न में आपका जो है टाइगर, गिर फॉरेस्ट, एंड ईस्ट में आपका जो है यू आर हैविंग द टाइगर, दैट इज रॉयल बंगाल. Tigers are also found in Madhya Pradesh, Sundarban of West Bengal, Himalayan region. Leopards are also members of cat family. They are important among animals of prey. वो तो आपको आजकल घर के बाहर भी दिख जाते हैं. The Gir forest is the last remaining habitat of Asiatic lion. बब्बर शेर जो. The Himalayas harbor, harbor मतलब give the shelter. Himalayas harbor मतलब they give shelter to hardy range of animals. जो ठंड में, जैसे लद्दाख में इतनी ठंड होती है, वहाँ आपको वाइल्ड ऑक्स जो 1 टन होता है, 1 टन सोचो, याक, तिब्बतन एंटेलोप, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, मतलब ये सब आपको वहाँ मिल जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेयर रेड पांडाज एंड स्नो लेपर्ड्स. इन द रिवर्स यू विल फाइंड टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स. जिस दिन आपको मैंने बताया था, दिस इज द वन which will be your map question. Latter is the only representative of variety of crocodile found in the world. Bird life में peacock, pheasant, duck, parakeet, green color के होते हैं, crane, pigeons, ये हमारे अपने हैं. We also have the migratory birds जो थोड़े टाइम के लिए यहाँ आते हैं. We have selected our crops from a biodiverse, from the reserve of edible plants. Edible मतलब जिनको हम खाने पीने में यूज कर सकते हैं. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided nature as milch animal, the one which gives you milk and all. They also provided draught power. Draught मतलब खींचना, जैसे आपका घोड़ा खींच कर लेकर जाता है. ड्रॉट मतलब खींच कर लेकर जाना. Transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. The insects help in pollination. Fruit trees and exerting biological control on such insects is harmful. यानी कि हर एक स्पीशीज का, चाहे वो इंसेक्ट हो, फिश हो, या फिर मिल्च एनिमल हो, या फिर नॉर्मल एनिमल हो, हर एनिमल का अपना एक रोल है. Hence,
Conservation is essential. As I said, the entire ecological balance goes around it. तो हमने क्या किया? We have exploited them. About 1300 plant species are endangered and 20 are extinct. चले गए. बहुत सारे एनिमल स्पीशीज भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. वाई? ग्रीडी हंटर्स, क्योंकि हम हंट करते हैं. जैसे मैंने आपको कस्तूरी मृग का बताया. देन आपके हॉर्न होते हैं उनको काटा जाता है. जो एलिफेंट्स होते हैं उनको मार के उनके जो आपके टस्कर होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं. Pollination due to chemical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species, reckless cutting of forest. मतलब हम बाहर से ऐसे एनिमल्स ले आते हैं जो यहाँ नहीं सरवाइव कर पाते हैं. That all brings imbalance. What government has done? सबसे पहला तो 1972 the Indian Act, Wildlife Act was enacted. 18 biospheres have been set up, जिसमें से आपके 10 जो हैं वर्ल्ड नेटवर्क में माने जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. ये मैं माइग्रेटरी आपको बता रही थी ना. माइग्रेटरी मतलब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन व्हेन देयर इज इनफ कोल्ड. जैसे हमने वो वाले चैप्टर में पढ़ा था जो हैप्पी प्रिंस वाले में, वहाँ ठंड होती है इसीलिए वो जो स्वैलो होता है वो वहाँ से उड़कर ही वॉन्ट्स टू गो टू नाइल जहाँ गर्मी होती है. तो दीज मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड दे कम ओवर है. अभी जो मौसम है ना इसमें आते. फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है. जैसे आपके गवर्नमेंट इन कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम, पन्ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऐसे इकोनॉमिक इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है जहां पर दे आर लिविंग इन देयर ओन नेचुरल एनवायरनमेंट. पार्क इज वेयर दे आर गिवन अ पार्क टाइप. जूलॉजिकल गार्डन्स सेट किए गए हैं. Yet we must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. क्योंकि अगर हमें रहना है तो we need to conserve them. Otherwise we will not be. क्योंकि हमारा पूरा लाइफ साइकिल इनके साथ में है. We are dependent on the plants, we are dependent on the animals, we are dependent on the forest. In your paper, as a part of map, these questions will come. These are राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट आपका जो टाइगर रिजर्व है, देन आपका धुंधुआ, देन सरिस्का राजस्थान, किलोडिया, देन रणथंबोर शिवपुरी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल, कान्हा, देन गिर, देन यहाँ पर गिंडी वाला एंड Kaziranga and Manas. These are the most important which comes in the paper.